اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بہت عام اعلان ہے اللہ کا، فرما رہا ہے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو منانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر صاحب استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کر دو۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے حج کا حکم دیا ہے۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہر کوئی یہ چاہتا ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہر کسی کے دل کی یہ تمنا ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہر کوئی اپنے رب کو منانے میں لگا ہوا۔ اگر رب مان گیا تو خدا کی قسم دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، ایک دن ایک چوراہے پر بیٹھے تھے اور رو رہے تھے۔ ایک صاحب نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ بولے میں آج بندے سے کہہ رہا ہوں اے بندہ اللہ کو منا لے، آج منا لے گا تو تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے بندہ مجھے منا لے میں مان جاؤں گا، بندہ مجھے منا لے میں مان جاؤں گا۔ میں بندوں سے اللہ سے ملانے کا کام کر رہا ہوں۔ اے بندے اللہ سے مل لے، اے بندے اللہ کو راضی کر لے۔ آج اللہ کہہ رہا ہے کہ آج تو مجھے منا لے گا میں مان جاؤں گا، لیکن بندہ ہے کہ مان نہیں رہا ہے، اور رب ہے کہ مان رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے منا لے مان جاؤں گا، رب تو مان رہا ہے، بندہ نہیں مان رہا ہے۔ وہی بزرگ کو صاحب نے کچھ دن کے بعد ایک قبرستان میں پایا۔ وہ قبرستان میں بیٹھے رو رہے تھے۔ اس شخص نے پوچھا کیا بات ہے حضرت؟ ایک دن اس چوراہے پہ روتے ہوئے ملے تھے، آج قبرستان میں روتے ہوئے ملے ہیں۔ تو آج وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب چوراہے پر بیٹھا تھا اللہ اور بندوں سے ملا رہا تھا۔ اے بندہ اللہ آج مان رہا ہے، تو بھی مان جا، لیکن اس وقت نہ مانا یہ بندہ، اب وہی بندہ مر کے قبر میں آ گیا۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں اللہ سے کہہ رہا ہوں اے مولا اس بندے سے راضی ہو جا، اے مولا اس بندے سے راضی ہو جا، رو رو کے منا رہا ہوں۔ اے پروردگار عالم میں گنہگار تو ضرور تھا، یہ تجھے مان نہیں رہا تھا، لیکن آج یہ تیار ہے، آج تیری رضا کے لیے تیار ہے، مان جا۔ اس دن مولا تو مان رہا تھا، یہ بندہ نہیں مان رہا تھا۔ مولا آج یہ بندہ مان رہا ہے، لیکن پروردگار نہیں مان رہا ہے، آج اللہ نہیں مان رہا ہے۔ کیا سمجھ آیا کہ جب تک زندگی ہے رب کو منا لو، رب ماننے تیار ہے۔ جس دن موت آ جائے گی تم مناتے رہو گے، وہ ماننے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تک زندگی ہے اللہ کو راضی کر لو۔ اور اللہ نے کہا مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھے منانا چاہتے ہو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ میں نے تجھے ثروت دی ہے، میں نے تجھے دولت دی ہے، میں نے تمہیں پیسہ دیا ہے، میں نے تمہیں قوت دی ہے، میں نے تمہیں طاقت دی ہے، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، میں نے تمہیں جو ہے قدرت دی ہے۔ تم جا سکتے ہو، تم حج کر سکتے ہو، تم طواف کر سکتے ہو، تم صحیح کر سکتے ہو، تم مینا جا سکتے ہو، عرفات میں مجھ سے رو رو کر کے دعائیں مانگ سکتے ہو۔ چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اب یاد رکھو جو بندہ ثروت والا نہیں ہے، جو بندہ پیسے والا نہیں ہے، جو بندہ دولت مند نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ اس کا حج کیسے ہوگا؟ وہ کیسے حج ادا کرے گا؟ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، آؤ اس کا حج کیسے ادا ہوتا ہے۔ میرے نبی سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو اتنی طاقت نہ رکھتا ہو، اتنی قدرت نہ رکھتا ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے کہ حج کرنے چلا جائے، وہ اس کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، زاد راہ کا انتظام نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کا انتظام نہیں جا سکتا ہے، بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اس کے ماں باپ زندہ ہے تو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اسے حج کا
सवाब अता फरमाएगा। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, फिर एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर उनके माँ बाप ना हो, अगर उनके माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर गए हो तो वो क्या करे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जा उसके कब्र पे चला जा और रब की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ कर दे, तेरा हज अदा हो जाएगा। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ऐसा भी हज करने का तरीका है। याद रखो, एक सा जो है अल्लाह के मुकद्दस वली थे, 60 हज कर चुके। हज एक बार फर्ज है। अगर आपके पास है दौलत, आप जाना चाहते हैं जाए, जितनी बार जाएंगे सवाब मिलेगा, लेकिन फर्ज एक बार अदा हो गया। अगर ना भी जाए तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर साहिब इस्तिताअत है तो एक बार जरूर हज करें, वरना गुनहगार हो जाएंगे। वो अल्लाह के मुकद्दस वली जिन्हें दुनिया हजरत मालिक बिन दीनार कहती है। क्या नाम है उनका? हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला। कहां के रहने वाले? इराक के, कूफा के रहने वाले थे। हजरत मालिक बिन दीनार अपने दोस्तों में ये बात हुई, ये फैसला हुआ, हज के दिन आ रहे हैं, हज को चलना है, एक काफिला तैयार करना है और ज़ादे राह जिसके पास जो साहिब इस्तिताअत है वो सारे सामान को इकट्ठा कर ले और हज के लिए जाना है। पहले क्या होता था, साल भर पहले से तैयारी करनी पड़ती थी। आज तो दौर वो है कि जहाज में बैठे 4 घंटे में पहुंच गए। पहले का हाल ये था कि पैदल जाना होता था, कोई अच्छे रोड नहीं थे, कोई अच्छा सा रास्ता नहीं था, कोई अच्छी सवारी नहीं थी, कोई ऊंट से जाता था, कोई पैदल जाता था, कोई बैलगाड़ी पे जाता था। और अगर कोई बहुत बड़ा मालदार है, बहुत ज्यादा पैसे वाला है, तो घोड़े पे जाता था। जिसके पास उस जमाने में घोड़ा था, समझ लो आज उसके पास एरोप्लेन है, आज उसके पास हेलीकॉप्टर है, इतना पैसे वाला माना जाता था। बैठ के जिसके पास जो सामान था वो तैयारी हो गई, काफिले का दिन आ गया कि आज निकलना है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं हज को नहीं जा सकता। माजरत तलब कर ली लोगों से कि आप लोग जाएं, मैं नहीं जा सकता। लोग आपस में बातें करने लगे, उनके बारे में आपस में बातें करने लगे। क्या बात है? लगता है कुछ प्लाट खरीदने का मामला है क्या, कुछ सौदा करने का मामला है क्या, पैसा बचाने की कोशिश की जा रही है, कहीं कुछ खरीदने का मामला है क्या। बहरकैफ लोगों ने आपसे सवाल किया, आप क्यों नहीं जाना चाहते? बोले ये राज है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं हज को नहीं जा सकता, तुम लोग जाओ। ये चले गए, काफिला चला गया हज करने के लिए, चला गया। जानते हो हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, ऐसे वली हैं, 60 हज कर चुके थे, बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम दीन। इनकी किताबें पढ़कर लोग आलिम बनते हैं, इनकी किताबें पढ़ करके लोग मुक़र्रिर बन जाते हैं, इनकी किताबें पढ़कर लोग बेहतरीन आलिम दीन बनते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार, उनके साथ हुआ क्या कि वो सारा सामान जो भी जो है हज का तैयारी में लगता है, ये दाल ले लो, ये चावल ले लो, ये खाने का सामान ले लो, ये कपड़ा ले लो, ये एहराम ले लो, ये कपड़ा ले लो, ये जूता ले लो, जो भी सारे सामान लगते हैं, इसलिए कि 6-6 महीने लग जाते थे जाने में और 6-6 महीने लग जाते थे आने में। इतना टाइम लगता था, पैदल ही जाना होता था, बड़ा वक्त लग जाता था। तो ये हाल था, तो उसका सामान भी मुहैया करना है, रास्ते के खर्च भी मुहैया करने हैं, बहुत पैसे लग जाते थे हज करने के लिए लोग, लेकिन लोग जाते थे क्योंकि उन्हें अल्लाह को राजी करना था। वो अपनी दौलत नहीं देखते थे कि लाओ, नहीं जाऊंगा तो बच जाएगा तो कुछ खरीद लूंगा, नहीं जाऊंगा तो ये सामान ले लूंगा, नहीं जाऊंगा तो थोड़ा मालदार हो जाऊंगा। नहीं, याद रखो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक बहुत बड़ी बात बता रहा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर मालदार बनना चाहते हो तो अल्लाह के घर का हज करो, अगर मालदार बनना चाहते हो तो बैतुल्लाह का हज कर लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब काबे पर पहली नजर पड़ती है, जो दुआ मांगो अल्लाह कबूल करता है। अगर मालदार बनना चाहते हो तो हज कर लो। याद रखो, कभी भी अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो पहले पैसा लगाना पड़ता है। अगर आप पैसा लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे। पहले आप पैसा खर्च करें अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में खर्च करें और हज करें, फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला आपको कितना नवाजता है। बल्कि लोग ताना पे ताना देने लगे, लेकिन मामला यहाँ कुछ और ही था,
कुछ और ही मसला था। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जो है सामान वगैरह जो भी खरीदने के लिए पैसे दिए थे, कूफे में गए, लोगों ने सामान खरीदा, उनके साथियों ने आपने ना खरीदा। आप जरा ठहर गए, लोग चले गए, आप ठहरे रहे। कुछ देर के बाद देखते हैं एक खातून आती है। एक खातून आई और उन्होंने देखा कि जरा दरिया के किनारे एक जानवर मरा हुआ है। वो खातून आई और आने के बाद उस जानवर का गोश्त काटती है और लेके चल पड़ती है। हजरत मालिक बिन दीनार उसका पीछा करते हैं। क्या सोचकर? उसका पीछा इसलिए करते हैं कि शायद ये खातून कोई होटल चलाती है क्या, लोगों को हराम गोश्त खिला रही है, मरे हुए जानवर का गोश्त खिला रही है, मुझे लोगों को बचाना है, इसलिए पीछा कर लिया, वरना जासूसी हराम है इस्लाम में। उन्होंने कहा मैं जासूसी नहीं कर रहा था, मैं इसलिए कि कई लोगों को हराम तो नहीं खिला रही, मैं उसके पीछे हो लिया। वो जाती गई और एक दरवाजे में दस्तक दी, दरवाजा खुला। मैंने देखा दरवाजा खुला तो 4 बच्चियां अंदर मौजूद, 4 बच्चियां अंदर मौजूद हैं और ये खातून अपनी बच्चियों को गले लगाकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं कुछ ला नहीं पाई, मैं कोई सामान इकट्ठा कर नहीं पाई, मैं तुम्हारे पेट को नहीं भर पाई, तुम्हारी भूख और प्यास मुझसे देखा ना गया। अब हमने देखा कि हम मरने के कगार पे हैं, तो हमारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जान बचाने के लिए मुर्दार भी खाया जा सकता है। तो मैंने देखा कि एक जानवर मरा पड़ा था, मैंने उसका गोश्त काट करके लाई हूं, यही पकाओ, खा के जान बचाते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार के होश उड़ गए, हजरत मालिक बिन दीनार के होश उड़ गए और खुद को मलामत कर, खुद को कह रहे हैं, वाह रे वाह मालिक, तू हज को जा रहा है और यहाँ तेरे लोग जो है, ये गरीब तबके के लोग, ये फाके में भाके हो रहे हैं, ये हराम खाने पर मजबूर हो रहे हैं। खुद पे लानत करते हैं कि ऐसा पैसा तेरे किस काम का और ऐसा हज तेरे किस काम का, तू हज को ना जा। और हजरत मालिक बिन दीनार दरवाजे को दस्तक देते हैं और अंदर जाते हैं और उस पैसे को जो आपने हज के सफर का इंतजाम किया था, वो सारा का सारा पैसा उस खातून को दे देते हैं और अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं, मौला मैंने तेरी रज़ा के लिए इस खातून को पैसे दिए हैं, परवरदिगार आलम मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, किसी भी मुसलमान को ऐसा न बना कि वो हराम खाने पर मजबूर हो जाए। ये दुआएं मांगी। हजरत मालिक बिन दीनार ने पैसे देकर के निकल गए, कहा ये लो और जरूरत पड़ेगी तो मुझसे कहना, मुझे जानती हो मुझे मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं मुहद्दिस हूँ, यहाँ का अल्लाह ने नवाजा है, जब भी जरूरत पड़ेगी मुझसे कहना। और ये मेरे पास 300 दीनार है, मैं तुम्हें देता हूँ। 300 दीनार थोड़े पैसे नहीं होते थे, आज के दौर में अगर उसे देखा जाए तो करोड़ के पार चले जाएंगे। इतने पैसे उठा करके हजरत मालिक बिन दीनार उस खातून को दे दिए। मेरे दोस्तों वापस चले आए। अब जो हज के लिए गए थे उनके साथी काफिले वाले, तो आप अपने घर में सोच रहे हैं, मैं भी गया होता तो आज अरफात में होता, मैं भी गया होता तो आज तवाफ करता होता, मैं भी गया होता तो आज जमजम पी रहा होता, मैं भी गया होता तो आज सफा और मरवा की सही कर रहा होता, मैं भी गया होता तो आज मीना में पहुंचा होता, आज रब की बारगाह में दुआ कर रहा होता, आज गुंबदे खजरा के नीचे बैठा होता, आज रोजे की जाली को पकड़ कर रो रहा होता, आज सरकार के रोजे की जियारत कर रहा होता। ये सारे ख्यालात आपको आ रहे हैं, ये सोच रहे हैं, मैं भी गया होता तो ऐसा होता। बहरकैफ अब जब हाजी 6 महीने के बाद वापस आते हैं तो आप हाजियों से मिलने जाते हैं, वही साथी जो गए थे उनसे मिलने जाते हैं और मिलते हैं, हाथ मिलाते मुसाफा करते, सलाम और कलाम होता है। उनमें से एक शख्स ने कहा, यार आप मालिक बिन दीनार, मैं तो जानता था तो आप बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन आप झूठ भी बोलते हैं। कहा मैंने कौन सा झूठ बोला? कहा यार तुमने कहा कि मैं हज के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तवाफ करता रहा और तवाफ के दौरान मैंने तुम्हें देखा, मैंने आवाज दिया और तुम सुन नहीं रहे थे, मैंने तुम्हें आवाज
दिया और तुम सुन नहीं रहे थे, मैं तुम्हें बुलाता रहा और तुम सुन नहीं रहे थे। हजरत मालिक बिन दिनार मन में सोचने लगे, मैं तो हज को गया नहीं था, इन्होंने देखा किसको है, इन्होंने देखा किसको है। बहर कर हैरानी में वापस आ गए। 2-4 दिन के बाद एक साहब के पास, एक और हाजी साहब के पास गए मिलने के लिए। जब वहां मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा, यार ऐसी बात तुमने कर दी है, तुम तो बोले थे मैं हज के लिए नहीं जाऊंगा, मैं हज नहीं अदा करूंगा, लेकिन मैं रौज़े रसूल के सामने तुमने मुझे 300 दीनार दिए थे, तुमने मुझे 300 दीनार दिए थे और उसके बाद तुम कहां गायब हो गए? मैं पूरे मदीने में ढूंढा, नहीं मिले। ये 300 दीनार कब से लिए फिर रहा हूं, ये पैसे ले लो। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैं और हैरान हो गया कि मैंने ये पैसे कब दे दिए, मैं तो हज के लिए गया ही नहीं था। बात क्या है, वजह क्या है? मौला की बारगाह में इंतजार होते हैं, परवरदिगार ये गिरा खोल दे, ये राज क्या है, मामला क्या है? मैं तो गया नहीं था और आज ऐसी हालत है। लोग कह रहे हैं कि मैं बुलाता रहा, सुनते नहीं थे, तवाफ करते समय बुलाता रहा, रौज़े रसूल के सामने बुलाता रहा, सुनते नहीं थे, ये मामला क्या है? तो हज़रत मालिक बिन दिनार है, रात को जब सोते हैं ख्वाब में आका तशरीफ लाते हैं, ख्वाब में सबसे प्यारे पैगंबर तशरीफ लाते हैं, सरदार अंबिया तशरीफ लाते हैं, जन्नत के मालिक तशरीफ लाते हैं, मालिक मुख्तार तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं मालिक बिन दिनार, मैं कितने गवाह भेजूं तेरे पास कि तेरा हज अदा हो गया? मैं कितने गवाह भेजूं? ये जो तू मिल रहा है ना, ये इनको मैंने भेजा है गवाही बनाकर, बता दे कि मैंने तुझे वहां देखा है, मैंने तुझे वहां देखा है। मामला क्या है? मालिक बिन दिनार ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, आप जानते हैं मैं हज के लिए नहीं गया था, ये कैसे हो गया? तो मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ फरमाते हैं, ऐ मालिक बिन दिनार, तुमने मेरी उम्मत के एक गरीब की मदद की है, तुमने मेरी उम्मत में एक गरीब की मदद की है। उस मदद की वजह से अल्लाह को तेरी मदद वो अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता बना दिया है, तेरी शक्ल का एक फरिश्ता बना दिया है। और ऐ मालिक बिन दिनार, वो फरिश्ता तेरे नाम पर कयामत तक हज करता रहेगा। तू जाए हज करने या ना जाए, अब वो तेरे नाम पे हमेशा हज अदा करता रहेगा। मेरे दोस्तों, अगर मैं हज पे चला गया तो एक हज अदा होगा, लेकिन हमने किसी की मदद कर दी और अल्लाह ने उसे कबूल कर ली तो जिंदगी भर हज अदा करने का सवाब मिलेगा, जिंदगी भर हज अदा करने का सवाब मिलेगा। मेरे इस्लाम का मुकद्दस शहजादों, मेरे दोस्तों, अगर हमारे इर्द गिर्द लोग परेशान हैं, लोग फाके बेफाके कर रहे हैं, घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, गरीब हैं और हम हज पे हज किए जा रहे हैं, तो ऐसा भी हज अल्लाह कबूल नहीं करता है। मेरे दोस्तों, हमने लोगों का माल खा लिया है, हमने लोगों की जमीनें हड़प ली है, हमने यतीमों का माल छीन लिया है और हम हज पे हज कर रहे हैं, तो ऐसा हज कबूल नहीं होता है। याद रखो, ऐसे हज पर अल्लाह कदम कदम पर गुनाह देता है। याद रखो, हज उसी का कबूल होता है जो हलाल कमाई के माल से हज किया हुआ हो। हलाल कमाई के माल से हज अगर करता है उसी का हज कबूल होता है, जो हराम कमा के हज करेगा उसका हज कबूल नहीं होगा। और अगर तुमने हलाल